Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. At this time, we are studying nucleic acids, and this video lesson is for the students of FSC Part 1 because it only deals with some basic concept of nucleic acids. Let's start. First of all, discovery of nucleic acid. Nucleic acid were first of all isolated in 1869 by Friedrich Mischer from the nuclei of pus cells. And you know, pus cells are actually dead bodies of white blood cells which died during the fight against the germs. Friedrich Mischer isolated a white substance from the nuclei of pus cells, and he named this white substance as nuclein. This nuclein was later named as nucleic acid due to its acidic properties. Why is nucleic acid given so name? Because nucleic acids was first isolated from the nucleus and due to its acidic properties. That's why it is called nucleic acid. Discovery 1869 में फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पस सेल्स, फर्स्ट नाम न्यूक्लियन, बाद में न्यूक्लिक एसिड कहा गया. नेक्स्ट है डिस्कवरी के बाद टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid DNA and number 2 ribonucleic acid or RNA. Occurrence, न्यूक्लिक एसिड हमें कहां मिलेगा? DNA is found in the chromosome in the nuclei of the cells, while small amount of DNA is also found in the mitochondria and chloroplast. मेजर अमाउंट डीएनए की न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में होगी, स्मॉल अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है. On the other hand, RNA is present in the nucleolus, a darkly stained body in the nucleus. न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक गहरे रंग की बॉडी, एक या दो होती है. यहां राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं. आरएनए न्यूक्लियोलस में मिलेगा. इसके अलावा इन द राइबोसोम्स और साइटोसोल, द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं. आरएनए न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम में और साइटोसोल में मिलता है. इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन. Nucleic acids are complex substances. They are polymer of units called nucleotides. Polymer mean large molecule consisting of many units. इसके यूनिट्स का नाम है न्यूक्लियोटाइड्स. In DNA, the nucleotides are called deoxyribonucleotides, whereas in RNA, the nucleotides are called ribonucleotides. Each nucleotide is made up of three components.
a 5 carbon monosaccharide pentose sugar number 1. इसके अलावा a nitrogen containing base और phosphate group phosphoric acid. These are the 3 components of nucleotide. A nucleotide consists of 3 components. कौन-कौन से? 5 carbon sugar, pentose sugar, nitrogen containing base, nitrogenous base जिन्हें बोलते हैं, और phosphoric acid, phosphate group. Pentose sugar. In ribonucleotides, यानी in RNA, pentose sugar is ribose, whereas in deoxyribonucleotides, यानी DNA में, the sugar is deoxyribose. इसी चैप्टर में हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं. What is the difference between ribose and deoxyribose? इसका स्ट्रक्चर भी हम सीख चुके हैं. राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए में जो शुगर होगी उसका नाम है राइबोस. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए में जो शुगर होगी उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस. ये मैंने दोनों शुगर्स बनाई हैं. 5 कार्बन शुगर, कार्बन नंबर 1 here, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. ये राइबोस शुगर का रिंग स्ट्रक्चर राइबोफ्यूरानोज के नाम से हमने ये स्ट्रक्चर सीखा था. और हियर इट इज डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए मिलेगी. दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो कार्बन नंबर 2 पे नजर दौड़ाएं. ये डीऑक्सीराइबोस शुगर की कार्बन नंबर 2 है और ये राइबोस की कार्बन नंबर 2. राइबोस में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है. इसलिए डीऑक्सीराइबोस डिफरेंट फ्रॉम राइबोस इन लैकिंग ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2. डीऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि राइबोस में कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है. This is the only difference between deoxyribose sugar and ribose sugar. इनके स्ट्रक्चर हम पहले सीख चुके हैं. मैंने सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, याद दहानी करवा रहा हूँ कि deoxyribose is different from ribose because deoxyribose has 1 oxygen less at carbon number 2 as compared to ribose. ये फर्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज पेंटोज शुगर. सेकंड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का है नाइट्रोजनस बेसिस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. नंबर 1 पायरिमिडीन्स, नंबर 2 प्यूरिन्स. Pyrimidine consists of a single ring. ये मैंने उसका स्ट्रक्चर दिखाया, हमारे सिलेबस में है नहीं, सिर्फ सिखा नहीं रहा हूं. ये एक 6 कॉर्नर रिंग होता है. 1 2 3 4 5 6. इसकी पोजीशन 1 पे और 3 पे नाइट्रोजन है, बाकी हर जगह पर कार्बन और एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और फिर वैलेंसी पूरी की गई है. ये पायरिमिडीन पेरेंट कंपाउंड है. हम सेकेंड ईयर में इसके बारे में पढ़ेंगे. इसका स्ट्रक्चर यहां सिर्फ ये दिखाया गया कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग. वो रिंग बनाना आपके लिए जरूरी नहीं है, वैसे मैंने सिर्फ दिखाया है कि इस तरह का रिंग होता है. पायरिमिडीन स्मॉलर बेस है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग, और इसकी आगे 3 टाइप्स है. साइटोसिन, जिसको एब्रीविएट किया जाता है कैपिटल C से. नंबर 2 थाइमीन, उसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है कैपिटल T.
और यूरासिल एब्रीवेटेड फॉर्म है यू। ये थाइमीन जो है इट इज फाउंड इन डीएनए ओनली, जबकि यूरासिल इज फाउंड इन आरएनए ओनली। और साइटोसिन दोनों में मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा और डीएनए में मिलेगा। तो pyrimidine bases are smaller bases, they consist of single ring only and there are three types: cytosine, thymine and uracil। जबकि जो प्यूरिन बेसेस हैं they consist of double ring। आप ये सामने देख सकते हैं, एक रिंग ये वाला जो pyrimidine ही है और एक ये वाला, दो फ्यूज्ड रिंग है। और ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, पायरिमिडीन भी और प्यूरिन भी, जिनमें कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी हो। इसमें हम ये समझे 9 कॉर्नर रिंग है, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 पे 3 पे 7 पे 9 पे नाइट्रोजन है, बाकी हर जगह पर कार्बन अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगाकर वैलेंसी बराबर की गई है। ये प्यूरिन पेरेंट कंपाउंड है। जो प्यूरिन की टाइप्स है एडेनिन और गुआनिन, ये इसी कंपाउंड में थोड़ी बहुत चेंज आती है तो वो एडेनिन और गुआनिन बनते हैं। फिलहाल आप यही याद रखें कि इस तरह का ये प्यूरिन पेरेंट कंपाउंड होता है। तो जो इसके आगे दो टाइप्स हैं एडेनिन और गुआनिन, इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, एक तो जगह पर फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देने से। मिसाल के तौर पर ये कार्बन नंबर 4 है, इस जगह पर अगर मैं हाइड्रोजन खत्म करके अमाइनो ग्रुप लगा दूं तो ये एडेनिन बन जाएगा। तो इसी तरीके से गुआनिन भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली के नतीजे बनता है। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाली बात हम सेकेंडरी में पढ़ेंगे। तो bases are of two types: pyrimidine bases, smaller bases, consist of single ring only। cytosine, thymine, uracil उसकी टाइप, और ये pyrimidine का पेरेंट कंपाउंड है। बाकी तीनों साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल इसी पेरेंट कंपाउंड से बनेंगे। जबकि ये दोनों बेसेस आपके सामने pyrimidine का पेरेंट कंपाउंड और प्यूरिन का पेरेंट कंपाउंड दिखाया गया। स्मॉलर बेस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल रिंग और लार्जर बेस कंसिस्ट ऑफ अ डबल रिंग। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है फास्फोरिक एसिड। Phosphoric acid has the ability to develop ester linkage with the hydroxyl group of the pentose sugar। जो आपकी बुक के अल्फाज थे वही मैंने रिपीट किए, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं अभी थोड़ी देर बाद। Phosphoric acid has the ability to develop ester linkage with the hydroxyl group of the pentose sugar। ये फास्फोरिक एसिड है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फास्फोरस है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है, H3PO4। अगर हम यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा, आयनिक फॉर्म हो जाएगी। तो फास्फोरिक एसिड में जो थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें हमने ये बात याद रखनी कि हैज द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर। अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ जा रहे हैं हम, जो ज्यादा समझने वाले। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, while phosphoric acid is attached to carbon at position 5 of the pentose sugar। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है ना, एक शुगर पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फास्फोरिक एसिड। 3 कंपोनेंट ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं? इनमें जो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोज शुगर की पोजीशन 1 के साथ अटैच होता है। आप देख सकते हैं दिस इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की
दिस इज पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 और पोजीशन 5, ये जो CH2H। बेस, कोई भी बेस हम ले सकते हैं। मैंने एक बेस साइटोसिन दिखाया, सिर्फ दिखाया है, सिखाया नहीं आपको। अगेन वही बात कह रहा हूं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस बेस विल अटैच एट पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा, और फास्फोरिक एसिड विल अटैच एट कार्बन नंबर 5। तो इन अ न्यूक्लियोटाइड, इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो 3 कंपोनेंट किस तरह से जुड़ते हैं? बेस इज अटैच टू पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड हैज अटैच्ड टू द पोजीशन 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। इससे पहले भी याद रखें, हमने ये बात पढ़ी कि दिस फास्फोरिक एसिड will develop ester linkage with the hydroxyl group of the pentose sugar। ये पेंटोज शुगर के इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और ये इस हाइड्रोक्सिल तीसरे कार्बन पे भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ एस्टर लिंकेज बनाएगा। अब ये देखते हैं कि ये 3 कंपोनेंट किस तरह से जुड़ते हैं। बेटो, दिस इज पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 के ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये शुगर का है, ये हाइड्रोजन 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 डीऑक्सीराइबो शुगर दिखाई है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये शुगर का था। अब ये साइटोसिन बेस दिखाया। बेस की जो पोजीशन 1 पे नाइट्रोजन होती है, पोजीशन पायरिमिडीन बेस में, पायरिमिडीन बेस में जो पोजीशन 1 पर नाइट्रोजन है, इस ये रिएक्ट करती है विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाइट्रोजनस बेस, पायरिमिडीन बेस की पोजीशन 1 पे जो नाइट्रोजन है उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। बेस की पोजीशन 1 पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो शुगर की कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है, और यूं ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगी। इसी तरीके से फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरिक एसिड जो है उसका हाइड्रोजन पेंटोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा, और ये फास्फोरस POC इसके साथ एस्टर लिंकेज बना देगी, लाइक दिस। ये प्रोडक्ट दिखाई गई। आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, बेस अटैच हो गया पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ, और फास्फोरिक एसिड ने एस्टर लिंकेज बना दी विद द कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। इस जगह पर जो हाइड्रोजन था और इस जगह पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, डीऑक्सीराइबोस था, यहां जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसने पेंटोज शुगर की हाइड्रोजन के साथ वाटर बना दिया और नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ गए। इसी तरीके से पेंटोज शुगर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस जगह पे है कार्बन नंबर 5 का, उसने फास्फोरिक एसिड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दिया, और यूं POC एस्टर लिंकेज डेवलप हो गई। तो यूं न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में बेस हैज बीन अटैच्ड टू पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड हैज अटैच्ड टू द पोजीशन 5, और जो फास्फोरिक एसिड ने पोजीशन 5 के साथ कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्शन किया तो इसके नतीजे में POC एस्टर लिंकेज डेवलप हुई। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। बेस, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड। बेस और पेंटोज शुगर अगर सिर्फ ये दोनों हों तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड भी अटैच होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा।
यहां हम देख सकते हैं कि किस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। याद रखें, ये इससे ऊपर ऊपर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जिस जगह पे कर्सर फेर रहा हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। उसमें बेस इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड अटैच टू कार्बन नंबर 5। अब ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, मैंने उसी न्यूक्लियोटाइड को दोबारा दिखाया, लेकिन ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। बेस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच और फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 के साथ। एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो पहले न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर की जो कार्बन नंबर 3 होती है, उसका हाइड्रोक्स ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। पहले न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्स ग्रुप 3 हाइड्रोक्स ग्रुप of the pentose sugar of first nucleotide react with the phosphate group of the next nucleotide। ये हाइड्रोक्स ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है और ये कार्बन जो है, कार्बन नंबर 3 जो पहले न्यूक्लियोटाइड की है, वो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ एस्टर लिंकेज POC एस्टर लिंकेज बना देगी, जैसा कि यहां पर है। ये प्रोडक्ट दिखाई उसकी, ये इस चीज की प्रोडक्ट मैंने यहां दिखाई। एक एस्टर लिंकेज ये डेवलप हुई POC, ये वाली POC एस्टर लिंकेज ये वाली, दूसरी एस्टर लिंकेज POC ये वाली। एक फास्फेट ग्रुप जो है वो दो शुगर के साथ एस्टर लिंकेज बना रहा है, एक ये वाली POC, दूसरी POC, ये एस्टर लिंकेज है। दो एस्टर लिंकेज बन रही है और इस एस्टर लिंकेज में फास्फोरस इन्वॉल्व है, इसलिए इस लिंकेज को कहेंगे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलेंगे? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये जो बात हमने पहले कही थी फास्फोरिक एसिड वाली हेडिंग में कि फास्फोरिक एसिड हैज द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर। ये दो जगह पे जो फास्फोरिक एसिड है, एक कार्बन नंबर 5 के साथ एस्टर लिंकेज बना रही है और दूसरी कार्बन नंबर 3 के साथ। पहले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 के साथ एस्टर लिंकेज बनाती है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि अटिपिकल न्यूक्लियोटाइड, तो टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में बेस इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। ये जो सारे स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, ये सिर्फ वो जो बातें हमारी टेक्स्ट में की थी उनकी सपोर्ट में है। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर आपको याद हो, हम सेकंड ईयर में इनको सीखेंगे। याद रखें, कंपोजिशन में हमने ये पढ़ने की कोशिश की न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में कि न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। इन RNA पेंटोज शुगर इज राइबोस, इन DNA पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के हैं, पैरिमिडीन और प्यूरिन। पैरिमिडीन बेसिस आर स्मॉलर, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग, जैसे मैंने दिखाया। साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल इसकी टाइप्स हैं। थाइमिन सिर्फ DNA मिलेगा और यूरासिल सिर्फ RNA मिलेगा। प्यूरिन लार्जर बेस है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, फ्यूज रिंग जैसे मैंने दिखाया आपको। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, एडेनिन और गुआनिन। और फिर फास्फेट ग्रुप के बारे में ये कहा कि फास्फेट ग्रुप हैज द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर। ये 2 शुगर दिखाई गई, उनका डिफरेंस कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइबोस में, और कार्बन नंबर 2 डीऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद ये प्यूरिन का पेरेंट कंपाउंड डबल रिंग आपको नजर आ रहा है, और फिर ये वाला पैरिमिडीन का पेरेंट कंपाउंड जिसमें सिंगल रिंग है, 6 कॉर्नर रिंग।
और प्यूरिन में 9 कॉर्नर रिंग है। प्यूरिन पेरिमिडीन पेरेंट कंपाउंड नजर आ रहे हैं। फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये पेंटोज शुगर के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एस्टर लिंकेज डेवलप करते हैं। और एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में जैसे मैंने बताया कि बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा, और फास्फोरिक एसिड जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ एस्टर लिंकेज बनाएगी इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। और ये रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि बेस की जो पोजीशन 1 पे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन है वो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है, और नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से फास्फोरिक एसिड की जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की हाइड्रोजन है वो पेंटोज शुगर की हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ मिलकर वाटर बना देती है, और POC एस्टर लिंकेज डेवलप हो जाती है। ये एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन के बाद दिखाया गया है, प्रोडक्ट है। देन 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन 3 का हाइड्रोक्सी ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन 5 का जो फास्फोरिक ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है, और एक और एस्टर लिंकेज डेवलप हो जाती है। यूं 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूक्लियोसाइड, the compound formed by the combination of base and pentose sugar is called nucleoside, while the compound formed by the combination of nucleoside and phosphoric acid is called nucleotide. ATP एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड होता है जो एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा AMP, ADP, NAD, NADP, FAD, all these are nucleotide. Thank you very much.